Good morning and welcome back student to Shanti Kunj online classes. So student, in previous lecture we complete our chapter sound. Today we are going to discuss about the exercise. So our first question, tick the correct. I hope आपने कर लिए होंगे tick the correct. And second question, fill in the blanks. Question number first, hertz is the unit of frequency. Second, our ear are sensory organ that help us to hear sound. Third, sound produced via tuning is a musical sound. To control noise, we must control the sources of noise. And fifth question, time taken by an object to complete one oscillation is called time period. C में है, state whether the following statement are true or false. Question number 1, the sound produced via tuning fork has no harmonics. True. Sound can travel from the moon to earth. False. Noise pollution may cause partial hearing impairment. True. The shape of the outer part of the ear like a funnel. True. Right. For human ear, the audible range is 20 Hz to 20,000 Hz. True. And D, match the following columns. Low frequency sound which we cannot hear, infrasonic कहलाती है. Instrument produce sound of single frequency, tuning fork. Maximum displacement of an oscillating object, amplitude. Sound with a frequency more than 2000 Hz, ultrasonic. Unit of frequency, Hertz. And now question answer. First one, what is amplitude? And the answer is the distance by which of the ball move away from its central position is called the amplitude of the oscillation. And इसका remaining part में लिखेंगे the maximum displacement of the ball from the mean position during oscillation is called amplitude of the oscillation. In the case of the simple pendulum as shown in the figure, the amplitude is AB और AO. तो आपको ये पिक भी ड्रॉ करनी है क्वेश्चन नंबर 1 में. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज वाइब्रेशन, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस. इसके लिए लिखेंगे व्हेन वी स्ट्राइक पैन विद अ स्पून इट स्टार्ट वाइब्रेशन एंड व्हेन वी टच इट जेंटली वी फील द वाइब्रेशन. और रिमेनिंग पार्ट में लिखेंगे वी सी दैट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड. इन सम केसेस द वाइब्रेशन आर इजीली विजिबल टू अस बट इन मोस्ट केसेस their amplitude is so small that we cannot see them, however we can feel them. Third question है what do you understand by propagation. तो इसके लिए आप लिखेंगे sound is a form of energy and is produced via vibrating body. The vibrating body transfers its energy to the neighboring molecules in the medium which in turn pass on their energy to other molecules. The mode of travel of the sound from the place of origin to the distance place is known as propagation of sound. तो इसके लिए आप यहाँ से लिखेंगे the mode of travel of the sound from the place of origin to the distance place is known as propagation of sound. Fourth question, discuss the character of sound. तो इसके लिए आप लिखेंगे amplitude, time period and frequency of a vibration. तो इसके साथ में आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में लिखेंगे द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन. फ्रिक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज. फिर एम्पलीट्यूड में आप लिखेंगे द डिस्टेंस बाय विच द बॉल मूव अवे फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजिशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन. और इसके थर्ड पार्ट में लिखेंगे द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड. और आपको ये वाला चित्र अगेन बनाना है, ये भी और ये भी. लास्ट क्वेश्चन, नेम द 3 मेजर क्लासेस ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सप्लेन हाउ द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय देम. आंसर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज वाइब्रेशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोड्यूस म्यूजिक. और इसमें 3 टाइप्स में फिर लिखेंगे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट. और स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में आप यहाँ से लिखेंगे कंप्लीट करेंगे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक
और फिर इसके एग्जाम्पल में वायलिन, बीना, सरोद, सितार, कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे साथ में। फिर इसका सेकंड है विंड और रीड इंस्ट्रूमेंट, इसमें आप लिखेंगे विंड इंस्ट्रूमेंट में वाइब्रेटिंग ईयर कॉलम तक, और इसके बाद में इसके एग्जाम्पल हैं फ्लूट, सेनाई, चैरिनेट, ये सारे, क्लैरिनेट, ये करेंगे। और इसका थर्ड पार्ट में लिखेंगे परकशन इंस्ट्रूमेंट, और इसमें इतना लिखेंगे प्रोड्यूस साउंड, और इसके एग्जाम्पल मंजीरा, घाटम, नोट, इतना। सो स्टूडेंट, यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है विद एक्सरसाइज। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 14 एंड नेम इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो इसके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। चलो पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट और उसके सर्किट्स क्या होते हैं। Many a time we have experienced that our elders stop us from touching any electric appliances with wet hand or without wearing slippers। तो आपने देखा होगा, आपकी फैमिली के लोग हमेशा आपको रोकते होंगे कि कभी भी हमें गीले हाथों से, या जब हम स्लीपर्स भी नहीं पहने हैं, ऐसे हमें कोई भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है उस समय हमें उसमें हैंड से टच नहीं करना है। This is due to our body become good conductor of electricity when our body is wet, so we should avoid this। तो हमें ऐसे नहीं छूना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय जब हमारी बॉडी गीली होती है तो वो एक बहुत अच्छा कंडक्टर की तरह वर्क करती है। We have already learned that the material which allow to electric current to pass through them are called good conductor of electricity। तो आप सभी को पता होगा कि जो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं वो क्या कहलाते हैं? गुड कंडक्टर, अच्छे कंडक्टर्स कहलाते हैं। और जो पास नहीं होने देते हैं उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम इन सब चीज़ों के बारे में भी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट विल नॉट फ्लो अनलेस इट हैज़ अ कंप्लीट पाथ सर्किट that return to its sources, battery, transformer। Current can harm us when it flows through our body। Electric shock can cause burn, physical injuries, damage, nervous system affected। तो जब भी हम करंट किसी अननेसेसरी हम छू लेते हैं उस समय करंट क्या होगी कि हमारी बॉडी से जाकर एक सर्किट कंप्लीट कर लेती है, और जिसकी वजह से हमें शॉक लगता है। जब हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं? हम जल सकते हैं, फिजिकली हम इंजरी हो सकती है, हमें कोई भी हड्डी वड्डी टूट सकती है, नर्वस सिस्टम अफेक्ट कर सकता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर हमको अननेसेसरी शॉक लग जाता है तो। फर्स्ट वन इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर। We have already learned that different material behave differently as far as the flow of electricity through them is concerned. Material which allow electricity to flow through them are called conductor, and material which do not allow electricity to flow through them easily are called insulator। तो हमने अभी पढ़ा कि जो मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं वो कंडक्टर कहलाते हैं, और जो फ्लो नहीं होने देते उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर रिक्वायर्ड टू सेव आवर डिवाइसेस फ्रॉम द हार्मफुल एंड डेंजरस इफेक्ट दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। तो ये क्या करते हैं? ये हमारी जो भी डिवाइस है, जो भी हम इंस्ट्रूमेंट हमने यूज़ किया है उसको डेंजरस से बचाने के लिए करते हैं, या फिर उसकी बॉडी पर अननेसेसरी करंट ना फ्लो हो उसके लिए हम इंसुलेटर का यूज़ करते हैं, और इससे हमारी डिवाइस भी सेफ रहती है और हम भी सेफ रहते हैं। डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है? यस। प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो एकदम प्योर वाटर होता है उसमें तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, उसे वेट कंडक्टर बोलते हैं। बट द वाटर दैट वी यूज इन अवर हाउसेज इज नॉट प्योर वाटर। और जो हम अपने घरों में यूज करते हैं पानी, वो प्योर वाटर तो नहीं होता, इसीलिए वो क्या है? वो गुड कंडक्टर है। टैप वाटर कंटेन अ लॉट ऑफ इम्प्योरिटी। टैप वाटर जो होता है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। द प्रेजेंस ऑफ द इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी मेक वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो भले ही थोड़ी सी इम्प्योरिटी मिली हो पानी में, वो क्या बना देगा? एक अच्छा कंडक्टर बना देता है इलेक्ट्रिसिटी का। वन एक्टिविटी दी हुई है, आप कलेक्ट टेप वाटर, सॉल्ट सोल्यूशन, लेमन जूस, केरोसिन, डिस्टिल वाटर, ग्लूकोज सोल्यूशन एंड अल्कोहल सोल्यूशन। टेक 100 मिलीलीटर बीकर, आप फ्लास्क एंड 2 नेल्स। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि कौन लिक्विड्स ज़्यादा अच्छे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं।
कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व इन इट। तो जो कंडक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो किस पर डिपेंड करेगा, जो वाटर में कितने भी सॉल्ट डिसॉल्व घोले गए हैं उनके ऊपर। डिस्टिल वाटर इज अ फ्री ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्ट, क्योंकि डिस्टिल वाटर में कोई टाइप का सॉल्ट नहीं होता, एंड हेंस डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इसीलिए वो उसमें वो क्या है, बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें कोई कंडक्शन नहीं होता है। टैप वाटर हाउएवर कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व इन इट। जो टैप वाटर होता है उसमें तो होता है, बस थोड़ी मात्रा में होता है, पर होता है सॉल्ट। सो दिस मेक टैप वाटर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर बन जाता है। दैट इज वाई वी गेट अ शॉक व्हेन वी टच एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विद वेट हैंड। और यही रीज़न है कि जब हमारे हैंड गीले होते हैं तब वो हमें शॉक लगने का चांसेस रहता है। यू मे यूज LED इन प्लेस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इन एनी सर्किट। आप क्या करते हो, बल्ब की जगह LED का यूज़ करते हो घरों में, ऐसा क्यों करते हो, चलिए जानते हैं। LED ग्लोज इवन व्हेन अ वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। LED अगर हमने थोड़ी सी भी करंट फ्लो कराई तो भी वो ग्लो कर जाएगी, बट इन द सेम केसेस अगर हमने बल्ब से स्मॉल करंट पास कराई तो वो इतनी जल्दी इल्यूमिनेट नहीं करेगा। देयर आर टू टर्मिनल ऑफ एन LED, वन टर्मिनल इज लॉन्गर देन द अदर। LED में दो टर्मिनल होते हैं, एक लंबा टर्मिनल होगा और एक छोटा। द लॉन्गर टर्मिनल इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द LED। तो जो लॉन्गर टर्मिनल होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा एंड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, और इसे हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट करेंगे। द शॉर्टर टर्मिनल इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द LED एंड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और जो छोटा वाला टर्मिनल होगा उसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हम कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो नेगेटिव टर्मिनल कहलाएगा। LED आर अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स सच एज रेड, येलो, ग्रीन एंड कलर लाइट दैट यू सी इन अ रिटेल स्टोर, स्टेजेस, ब्रिजेस एंड इन द keypads of mobile phone are all LED light emitting diodes। ओके, तो जो LED होती हैं वो कई कलर्स में होती हैं, रेड, येलो, ग्रीन। आपके मोबाइल के जो कीपैड होते हैं उनमें भी बहुत सारे कलर्स की लाइट एमिट होती है, तो वो भी हमारे किसकी वजह से होती है, LED की वजह से होती है। और LED स्मॉल करंट पर भी ग्लो कर जाती है। LED की फुल फॉर्म क्या होती है, LED की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड्स, लाइट एमिटिंग डायोड। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, करंट के केमिकल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं आइए जानते हैं। द फिनोमिना ऑफ कॉजिंग केमिकल चेंजेस बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ द करंट। तो जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं किसी केमिकल से तो उसमें जो चेंजेस आते हैं, जो इफेक्ट आते हैं, वो क्या, वो फिनोमिना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। इन दिस फिनोमिना इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, और इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। इलेक्ट्रिक पेन, लेट अस डू अ सिंपल एक्टिविटी टू सी हाउ एन इलेक्ट्रिक पेन कैन बी सेट अप एंड यूज्ड फॉर राइटिंग पर्पस। तो एक इलेक्ट्रिक पेन को हम समझते हैं कि उसे राइटिंग पर्पस से हम कैसे यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस, द वर्ड इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स ब्रेकिंग अप बाय द एक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। It may be defined as the follow: the production of chemical reaction by the passing an electric current through an electrolyte is called electrolysis। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है कि अगर हमने कोई केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिक करंट पास कराई तो होगा क्या कि उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे, और जो चेंजेस कहलाएंगे वो उसकी वजह से जो प्रोसीजर होगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस कहलाएगा। फिगर शोज हाउ एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल वर्क। एक पिक्चर दी हुई है, इसमें ये बताया गया इलेक्ट्रोलिटिक सेल किस तरह से वर्क करता है। बी डीप टू प्लेट्स और रॉड मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। हमने क्या किया, इसमें दो रॉड या प्लेट्स ली और इसमें डुबो दी, लाइक ग्रेफाइट एंड कॉपर। तो हमने कंडक्टिंग मटेरियल कौन लिया, या तो हमने ग्रेफाइट लिया या कॉपर लिया। इन द लिक्विड कॉल्ड द इलेक्ट्रोलाइट्स, और जो लिक्विड जिसमें हमने इसको डुबोया है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। दीज प्लेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड, और इन प्लेटों को हम क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे इलेक्ट्रोड। वन ऑफ देम इज कॉल्ड द कैथोड, इनमें से वन क्या कहलाता है, कैथोड। जो नेगेटिव होता है वो कैथोड कहलाता है। एंड द अदर वन इज कॉल्ड द एनोड, जो पॉजिटिव होता है वो एनोड कहलाता है। द एंड ऑफ द टू इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड अ सेल और बैटरी, और इनके जो छोर हैं यानी एंड है उनको हमने
एक बैटरी से, यानी ये हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। When we switch on the electric current, the electrolyte dissociate into positive ion and negative ion। अब जब हमने इलेक्ट्रिक करंट के लिए इसका स्विच ऑन किया तो जो हमारे केमिकल है वो आयंस में कन्वर्ट होने लगेगा, पॉजिटिव आयन और सेकेंड नेगेटिव आयन। द पॉजिटिव आयन कॉल्ड द कैटायन। जो पॉजिटिव आयन बनेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, कैटायंस बोलेंगे। और टूवर्ड द कैथोड एंड द नेगेटिव आयन कॉल्ड द एनायन मूव्स टूवर्ड द एनोड। तो जो पॉजिटिव आयन होंगे जिन्हें हम कैटायंस कहते हैं वो कैथोड की तरफ जाएंगे, और जो नेगेटिव आयन है जिन्हें हम एनायन कहते हैं वो एनोड की तरफ मूव करने लग जाएंगे। इस तरह से ये प्रोसीजर होता रहेगा। एट द कैथोड, कैथोड पर क्या होगा, द कैटायन टेक अप इलेक्ट्रॉन एंड बिकम न्यूट्रल। तो कैथोड पर क्या हो जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और उसे क्या बना देंगे, न्यूट्रल बना देंगे। द एनायन मूव टू द एनोड, और जो एनायंस होंगे वो एनोड की तरफ मूव कर जाएंगे एंड गिव अप इलेक्ट्रॉन्स, और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल का फॉर्मेशन होगा। और इस तरह से आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये बल्ब एक हमने इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू ऑन किया। सो आई होप स्टूडेंट आपको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसीजर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।